Don't forget to like, subscribe and share the videos. All right. So a big warm welcome to all of you all on Ma'am, today's. hello. Yes. So in case if we are not able to attend this fully, we will be able to get this recorded session. Yes. Okay. Thank you. हाँ जी, चोको बॉम्ब्स एंड केक्स टू एवरीवन. सबको म्यूट कर दो. मैम, मैं म्यूट करने वाली हूँ. पहले थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए 5 मिनट का. जिसको जितना हल्ला मचाना है मचा ले, उसके बाद सब लोग म्यूट पे हो ही जाएंगे. All right. So a big warm welcome to all of you all. My name is Geer Chapia. I am based in Mumbai. I am a tarot card reader, numerologist, astrologer, bachelor therapist and a lot more. और आज हम जो बात करेंगे, what we're going to talk about today is tarot. All about tarot. खाना खाया है? आई थिंक शाम के 7 बजे का टाइम बढ़िया नाश्ते का होता है. सो इसलिए सबके घर में बर्तन बज रहे हैं, सबके मम्मियां खाने का पूछ रही है. Guys, let's make this interactive. Keep yourselves on mute. Wow. I like how everyone just wants to make all sorts of noise. ठीक है. मीनाक्षी जी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट करके आवाज कर रहे हैं. क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ओके. So, how many of y'all practice tarot professionally? आप लोग प्रोफेशनली प्रैक्टिस कौन कौन करते हो? रेज योर हैंड्स. आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल प्रैक्टिस प्रोफेशनली. मीन यहाँ पे हैंड्स रेज करो. क्या आप लोग रीडिंग्स करते हो, प्रैक्टिस करते हो? आप लोगों ने प्रोफेशनली कहीं से सीखा है? इट इज योर करियर एंड दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. सो वी हैव 20, how many? 30, 22? Lovely. 24, 25. और कौन है? नहीं, बेसिक नॉलेज नहीं. मैं प्रोफेशनली बात करी, जिसको प्रोफेशनली आता है प्रॉपर्ली. 26 ऑफ योर. ग्रेट. अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने टैरो सीखा है, आता है टिटबिट्स में, बेसिक नॉलेज, व्हाट्सएप कोर्सेज, यूट्यूब कोर्सेज या व्हाटएवर सीखा है, बट प्रैक्टिस नहीं करते? माने कि टैरो की बेसिक नॉलेज है. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव बेसिक नॉलेज ऑफ टैरो? रेज योर हैंड्स. 36, 37, 40. वाओ. 43. बेसिक आता है. बेसिक वाले हैंड रेस कर दो. 48, 49, 50. बस 50. ग्रेट. और बाकी के जो है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 250, 250-300 लोग जिनको टैरो के बारे में नहीं पता है. ग्रेट. सो मेरा टारगेट ऑडियंस तीनों है. थैंक यू अल्पा. यस. आज का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा. शांति. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. चलो. एवरीवन पुट योर हैंड्स डाउन. अभी ना मुझे एक काम करना पड़ेगा. मुझे सबको म्यूट करने के बाद ही बात करने की शांति मिलेगी. अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ मी टू टॉक. शांत एवरीबॉडी. थैंक यू सोनल. अभी मैं फिलहाल चैट को बंद नहीं कर रही हूँ. चैट इज ओपन फॉर फ्यू मिनट्स. ठीक है. सो आपका एजेंडा क्या है टू लर्न tarot or for you to be here in this class today? 2 days of free tarot reading or to know tarot. Monica, Avni, Rupinder, Astha, Rachna, Yogita, Priyanka, Chirag, astronumerologist Amrita, please put your hands down. Our mission is sorted for now. We know how many of you all are tarot readers. So, want to take it up as a profession, gain knowledge, be professional in it, okay? Type. I want to know about my future, get some new insights and final nuances. Professional. और आपका एजेंडा क्या है आज की क्लास? Want to know about tarot. What brings you here? Why are you on this platform is what I want to know from you. Be professional reader, okay? Professional. Learn tarot, satisfy my curiosity, interest in astrology. Loved your Astro Tarot Bootcamp. Thank you to see me. Thank you. Want to learn for myself, gain knowledge, guide loved ones. Great. So there are so many saying, want to know what this is all about and be professional. So you are in the right place.
You are exactly in the right place, because जब तक एक इंसान खुद प्रोफेशनल टैरो रीडर नहीं होता, वो दूसरों को सिखा नहीं सकता. Right? Want to help myself, want to help the family, great. So learn something new, yes. Bhavna Arora says that. Or thank you, universe, to connect to you to heal. Thank you. Not satisfied, your technique is very easy, yes. To protect yourself, first time learner. So the first time learners, hi, y'all are the ones who are my main target audience. Okay, interest in this topic and want to learn, great. All right, so learn techniques, improvise yourself, become a professional. That is exactly what we are going to do. Not in these 2 days, of course. 2 दिन में कोई professional नहीं बनता. But that's what the main course is all about. So, according to me, your main reason, now we can stop the chat. We can stop the chat. We can now see कि मैं आपको यहाँ पे 3 दिन क्या offer कर सकती हूँ, और आप में से कौन यहाँ पे रह सकता है. I mean, what is your takeaway from here, right? Everybody, है ना? So, आपका टेकअवे ये होगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आपने किसी को ऐसे कार्ड्स फैलाते हुए देखा है, आपने किसी सुंदर सुंदर टैरो रीडर्स को टैरो रीडिंग करते देखा, you just don't know what this is all about. So it is going to give you a platform, 2 days. It's going to give you a platform for your interest and your curiosity. आपकी ये जिज्ञासा को एक बेस मिलेगा कि हाँ, मैं सही चीज समझ पा रही हूँ. ओके, those of you who are interested, आपको समझ में आएगा कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है. आधों को लग रहा होगा यार ये चीटिंग तो नहीं कर लेगी, पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी, पहले हम देख लेते हैं. है ना, पहले हम देख लेते हैं which is the lady, what is she trying to teach, what is happening. So आपको एक थोड़ा सा 2 दिन का assurance मिल जाएगा मेरे साथ में. All right, there are few people who are not able to join, so just give me a second. Just give me a second, please. I'm resending it everywhere. All right. How long will the session be? I think for 1 hour. We are going to be talking for 1 hour. You're going to be seeing me for 1 hour. और ये फर्स्ट डे पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है क्योंकि लोग लास्ट में ज्वाइन करते हैं, कभी किसी ग्रुप में जगह नहीं होती है. सो वी हैव टू अकोमोडेट एवरीबॉडी. सबको हम लोगों को ये देना पड़ता है place. So yes, it takes a little time. Want to know how tarot can tell exact accurate readings? Absolutely. पता है क्या लगता है लोगों को टैरो के बारे में, कि ये जो 78 कार्ड्स होते हैं, इनमें कुछ अलग अलग कलर के, they were not coming in my hand. तो ये कुछ अलग अलग कलर के हमारे पास ये फिगर्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, बेसिकली स्क्रीनशॉट्स होती हैं किसी लोगों की, अ गर्ल और अ गाय और अ मैन और अ वुमन और व्हाटएवर. एंड इस पे से आप फ्यूचर कैसे बता सकते हो? रूपल कोहली, डू यू डू रीडिंग फॉर एक्ट्रेस एंड एक्टर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिसकी रीडिंग करनी है वो इंसान है, वो इम्पोर्टेंट है ना. सो इनमें ऐसा क्या होता है, इनमें ऐसी कौन सी सिंबोलॉजी होती है, दीज आर द टैरो कार्ड्स, कि इनमें ऐसी कौन सी सिंबोलॉजी होती है बिकॉज ऑफ विच वी कैन प्रिडिक्ट, नो एंड गो इनटू द डिविनेशन डिटेल. डिविनेशन क्या होता है? डाइविंग डीप, डाइव, डिविनेशन, ठीक है. Divination is diving deep into intuition, into knowledge. Divination is nothing else. अब मैं सबकी चैट म्यूट करूंगी because if now what I'm going to be talking, तो इसमें होगा ये कि चैट will be disturbing और मेरा ध्यान बटेगा, इसीलिए चैट बॉक्स भी बंद है. And we are going to start with our demo, the main part why you all are here. So without further much things कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, आप लोगों को सबको पता है मैं कहाँ से आई हूँ और मैं क्या हूँ. So मुझे उसकी इंट्रोडक्शन और देने की जरूरत नहीं है, one liner and we are done. Now, what is tarot? Tarot is one of the divination tools. One of the divination tools, just like numerology, just like astrology, just like bachelor therapy, runes, sigils, there are multiple divination tools.
फॉर व्हाट, ये किस लिए डिविनेशन टूल्स होते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप में से जो लोग भी कैमरा ऑन कर सके, इट विल बी नाइसर फॉर मी टू कनेक्ट विद यू ऑल, है ना, बिकॉज आपकी जो रिएक्शंस होंगे वो मुझे बताएंगे कि मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ कि नहीं, अदरवाइज मैं थोड़ा सा ट्रैक भूल जाती हूँ। आई अंडरस्टैंड एंड सी। सो प्रियंका, आस्था, मीरा, Anupama, Oppo is okay. Whoever, put on your cameras. Let me see your pretty faces, handsome faces. So yes, let's connect that way. Tarot is a divination tool that is going back many years. It is definitely not an Indian origin. कि कोई कहे कि ये इंडिया से आता है, लाइक हम कहते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इंडियन है, डेफिनेटली है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिसमें सर्कल में कुंडली बनती है वो डेफिनेटली वेस्टर्न है। टैरो इज नॉट इंडियन, डेफिनेटली नॉट। देन वेयर इज इट स्टेमिंग फ्रॉम? इट इज मोर ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, मोर ऑफ यूरोपियन। इसीलिए इनके जो पिक्चर्स होते हैं जो हमारे कार्ड्स पे होते हैं ये काफी इंग्लिश होते हैं, वेस्टर्न होते हैं। देयर इज नो वन वेयरिंग अ साड़ी, there is no auntie like wearing a sari or a girl wearing a salwar kurta over here. There is no man wearing a turban like the हमारे जैसे राजस्थानी होते। तो ये इंडियन सिस्टम यहाँ पर नहीं है। But what does tarot do? Tarot predicts, guides, helps, solves, resolves any and every issue. ऐसी कोई टॉपिक नहीं है ना। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज दिस इज माई वे ऑफ टॉकिंग। मैं सिर्फ इंग्लिश बोलूंगी तो मैं भूल जाती हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत पैदल है, और सिर्फ हिंदी बोलती हूँ तो मैं थोड़ी सी लॉस्ट हो जाती हूँ क्योंकि मेरी हिंदी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। सो आई गो विद बोथ लैंग्वेजेस सो दैट इट हेल्प्स एवरीबडी, क्योंकि हर कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता, हर कोई इंग्लिश नहीं समझ सकता। और अगर मैं भारी भरकम हिंदी में बात करूंगी तो मैं खुद को पंडिताइन फील करती हूँ। सो आई नेवर डू दैट आइदर। सो इट्स ऑलवेज अ बेनिफिट ऑफ बोथ वर्ड्स, ठीक है। टैरो में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आंसर नहीं हो सकता। हालांकि कुछ क्वेश्चंस हम अवॉइड करते हैं, जैसे कि मेरे पास हुए हैं केसेस, मदर इन लॉ के बारे में डॉटर इन लॉ के पूछती है ये बुड्ढी कब मरेगी। सो वी नेवर डील विद क्वेश्चंस व्हिच टॉक अबाउट समवन्स डेथ, इवन इफ समवन इज ऑन द डेथ बेड। नेवर एवर। दिस इज इंटरफियरिंग विद द नेचर, with God's will and wish. We never deal with such questions, no matter how grave the situation could be. आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत ही अच्छे एम्पैथ हैं, आपको दिख रहा है कि सामने वाले को डेथ हो सकती है, तब भी आप नहीं बोलोगे। It is against the law of divination. Since I am the teacher here, since I am the one who is going to guide you into this, you will have to follow me. As of now, at least, till either you are with me for 2 days, 20 days, 20 years, whatever. This is how I deal with things, right? And this is how I mentor. And today we have all multiple mentors also. So ultimately choice aapki hogi. Next thing, what we never ask tarot, mere ko ladka hoga ki ladki hogi. Again, it's God's will and wish. So never ever entertain such questions. And of course, there are many more unethical, ethical things that we can talk about tomorrow. आज हम टैरो की basic fundamental understand कर रहे हैं. So those of you wanting to know कि ये class कितना time चलेगा, क्या है? Today, since we have started 15 minutes late, we continue till 8:15. Okay. Tomorrow 7 to 8. And what is this course all about? What is the whole fundamental? It will all be revealed tomorrow. आज हम लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि हम डेमो में आए हैं, इसका मेन कोर्स क्या है, फलाना ढिमकाना, हम सब बाद में करेंगे। वी विल एंजॉय द सूप एंड द स्टार्टर एंड द डेजर्ट। मेन कोर्स टुमारो। एवरीवन विद मी? यस। द मिथ बस्टिंग, व्हाट आर द बिलीफ सिस्टम्स ऑफ टैरो, डूज एंड डोंट्स, ये सब हम कल करेंगे। आज हम टैरो को समझते हैं कि टैरो होता है। ओके, I may be little bit quick, but this is just to show you all, as I said, कि अगर इंटरेस्ट है तो इसमें आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। हम एक बुक देखने जाते हैं, हमें बुक के बारे में, मेरे साथ कई बार होता है, पता है, हम लोग बुक देखने जाते हैं और मुझे पता है कि मुझे ये बुक पढ़नी है, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हैव रिकमेंडेड, गूगल पे रिकमेंडेशन आई है, बड़ी अच्छी है, फलाना ढिमकाना, बट जब मैं वो बुक देखती हूँ वो पैक्ड होती है, मुझे पढ़ने ही नहीं मिलती। Then it is for 100 rupees or a lakh of rupees is not the problem. मैं ऐसे जब तक उस पर से स्क्रॉल अप नहीं करती तब तक मैं बुक खरीद नहीं सकती, मेरे को रिकमेंडेशन मिले तब भी। आई नीड, एंड वो जो दुकानदार है मुझे बुक खोलने देगा नहीं,
नहीं तो उसकी पैकिंग खराब होगी। मुझे बेसिकली इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना होता है, बुक ऐसे देखनी होती है, फिर बुक के अंदर मैं कोई भी एक फ्रेज पढ़ लेती हूँ, पटा पटा नहीं पटा नहीं पटा। एंड आई थिंक एवरीवन हियर इज आल्सो द सेम। वी नीड टू सी व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, राइट? यू जस्ट कांट से अच्छा ये कोर्स है ऐसा है चलो आगे, नहीं, देयर विल बी पीपल हु विल से जय माता दी चलो जो होगा देखा जाएगा, बट देयर इज वेरी फ्यू। सो आई नीड टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट टू यू. I need to tell you what this subject is all about. Tarot cards is a divination tool in the field of occultism. जिसे हम समुद्र शास्त्र कहते हैं हिंदी में. समुद्र माने ओशन. ऑकल्टिज्म ऐसे फील्ड है कि ओशन जैसा गहरा है, ओशन जितना बड़ा है, आप इसे नाप ही नहीं सकते. कोई इंसान नहीं है जो एक बार में इसको नाप ले. आपको मर्जी दुनिया की सारी मोडालिटीज या टूल्स ऑफ ऑकल्टिज्म आते हैं. टैरो इज वन ऑफ देम. वेरी वेल नोन बट वन ऑफ. अब इसमें आप कितना डिटेल में जा सकते हो, जितना आप जाना चाहते हो. कुछ लोग कहते हैं कि मैम टैरो तो मतलब एक्यूरेट होता ही नहीं है. मैं ये कहती हूँ, ये एक्यूरेसी की भी बात आती है, मैं सिंपली इतना कहती हूँ, ब्लड राइटिंग में डाल के सिग्नेचर देखे तो कोई नहीं देता. एस्ट्रोलॉजी भी नहीं होती तो टैरो कहाँ से इतनी 100% एक्यूरेट होगी. देयर इज नथिंग, नो टूल विच इज 100% एक्यूरेट, बिकॉज वी आर रीडर्स, वी आर नॉट गॉड. हमारी सोच के आगे, आपकी किस्मत के आगे, आपकी कुंडली के आगे भगवान की मर्जी होती है. फिर आप भगवान को माने, अल्लाह को माने, जीसस को माने, जिसको भी माने. That is the supreme call. We can only predict. We can't decide someone's fate. Am I right? है ना? तो ये जो एक कंसेप्ट है ना कि 100% मैं गारंटी दे रही हूँ, उसी समय भाग जाना वहां से. It doesn't work. वो जितनी जोर से बोलेंगे उतना जोर का आपको झटका और धोखा मिलने वाला है. So never do that. Even if you become a tarot reader tomorrow, never ever say I am saying 100%. You are not God. You may think that you are. वो एक आ जाता है कभी कभी, मैं तो भगवान हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, मुझे बियॉन्ड रेम्स दिखता है, बहुत अच्छा है बहना, बट आप भगवान नहीं बने और ना बनोगे. सो कमिंग डाउन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टैरो. टैरो होता क्या है? ये एक डेक है ऑफ 78 कार्ड्स. फिक्स्ड है, 78 कार्ड्स है. ये जो है, ये इस कार्ड के डेक को हम कहते हैं राइडर वेट. मैं इसका लिंक आफ्टर वी फिनिश द क्लास मैं ग्रुप में भेज दूंगी. जिस जिसको ऑर्डर करना है, मैंने अमेजोन का लिंक भेजा है, एंड यू कैन ऑर्डर इट, दोज ऑफ यू हु हैव इट फेयर एंड स्क्वायर. अगर आप इसे करना चाहते हो, इट इज नाइस टू हैव द डेक विद यू. आपको डिसाइड करके, बिकॉज द कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन वेडनेसडे, आपको डिसाइड करके कल लेना है, नो प्रॉब्लम. यू शुड नो द लिंक. अदरवाइज आप इतना भी कर सकते हो, मैं आपको एक और लिंक भेजूंगी जो गूगल पे 78 कार्ड्स का एक लिस्ट आ जाएगा, पिक्चर्स आ जाएंगे, इमेज आ जाएगा. आप वो प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो, तो पता चल जाएगा कि मैं बात क्या कर रही हूँ. यू कैन डू दैट ऑल्सो. साइमल्टेनियसली भी आप वो कर सकते हो, बोथ वेज. 78 कार्ड्स. अब इसमें भी डिवीजन होती है. हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स और माइनर इवेंट्स. मेजर इवेंट्स यानी क्या? किसी की डेथ हो गई, किसी बच्चे का बर्थ हुआ, किसी की शादी हुई, कोई बच्चा पढ़ने के लिए बाहर चला गया, किसी का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया, है ना, किसी को बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई. ये सारे मेजर इवेंट्स होते हैं विच आर सिग्निफाइड और शोन बाय मेजर अरकाना कार्ड्स. इसका हिंदी मुझे नहीं आता. 78 में से 22 यानी कि 22 कार्ड्स होते हैं विच आर आवर मेजर अरकाना कार्ड्स, जो हमें हमारी लाइफ में होने वाली मेजर इवेंट्स या इनएविटेबल इवेंट्स, कि ये तो होके ही रहेगा, ये जो चीज है ये होके रहेगी, इनएविटेबल एंड मेजर इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है. अब 78 में से 22 चले गए, 56 बच गए. 56 जो होते हैं वो माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं. माइनर अरकाना का मतलब क्या होता है? माइनर अरकाना कार्ड्स वो होते हैं जो हमारी लाइफ के माइनर यानी कि छोटी इवेंट्स को, एविटेबल इवेंट्स को सिग्निफाई करते हैं. ये काम टल सकता है, छोटी सी चीज है, जैसे किसी का बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आईसीयू में पहुंच गया, कोमा में चला गया, इज अ मेजर अरकाना. चलते चलते जरा सा गिर गया, पैर में खरोच आ गई, यहाँ पे जरा सा कोनी घस गई, माइनर अरकाना. बड़ी कंपनी में जॉब लग गई,
फर्स्ट टाइम, मतलब तो 1-2 लाख कमाते हुए सडनली 7-8 लाख का जंप मार दिया, मेजर अरकाना। वो जॉब में किसी से प्यार हो गया, माइनर अरकाना। बट वो लड़की धोखेबाज निकली और वो लड़की ने बड़ा सा धोखा दे दिया, पुलिस के चक्कर लग गए, मेजर अरकाना। आप समझ रहे हो? हाउ डू यू सी द मेजर एंड द माइनर? माने जो चीजें होके रहेंगी इनएविटेबल हमारे मेजर अरकाना से पता चलता है, एंड द माइनर अरकाना इज द इनएविटेबल और द स्मॉल इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ्स। अब जो ये 56 कार्ड्स हैं, 22 हो गए, अब 56 पे थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड कर। जब हम पहली पहली बार किसी को मिलते हैं ना, अब आप में से यहाँ पे कितने लोग हैं? 417 पीपल। आई एम श्योर 200 लोग तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आइदर दे आर माय स्टूडेंट्स या माय फ्रेंड्स या कोई ना कोई मेरे पहचान के लोग हैं, ठीक है ना? तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस, हाँ ये हीर छब है, पता ये करती है, ऐसी दिखती है ऐसी। लेकिन जो लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, एग्जाम्पल मैंने अलका कलानी को पहली बार देखा है, श्रुति जडेजा इज फर्स्ट टाइम, जया शाह, प्रीति खन्ना, सुमिंदर कौर, ये कुछ कुछ लोग मुझे पहली बार दिख रहे हैं, लाइक द बाकी के 200। आपको मेरा नाम याद करना, मेरे बारे में समझना थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-3 बार और में यूज्ड टू हो जाएगी। सो व्हेन वी फर्स्ट टाइम मीट समबडी, इट टेक्स टाइम टू रजिस्टर। बस ये टैरो से पहली बार अगर मिल रहे हो ना, आपको वक्त लगेगा उसे रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है फर्स्ट में, उसके बाद फ्लो में आता है। एवरीवन एग्रीज टू मी? यस। सो 56 को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमारे जो एलिमेंट्स हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर हियर इनटू स्पिरिचुअल एंड ऑकल्ट क्लास राइट नाउ, तो हमारे लिए एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एलिमेंट्स के बिना लाइफ में कुछ नहीं होता। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे तो 5 होते हैं, पर हम आकाश को यहाँ नहीं पकड़ेंगे, बाकी बचे 4। फायर, अर्थ, एयर, वाटर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, है कि नहीं है? ठीक है। हर एक एलिमेंट को एक एक कार्ड का सूट दिया है। सूट माने कि अ काइंड, ठीक है। जैसे कि फायर को वॉन्ड्स दिया है, ये सब आपके नोट्स में बाद में आएगा, आपको लिखना, आप लिख लो, दिस ऑल गोइंग टू कम इन द नोट्स लेटर इन द पेड क्लास। फायर जो एलिमेंट है उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो है वॉन्ड्स का सूट, वॉन्ड्स वन ऑफ द फर्स्ट सूट्स। सेकंड, जो वाटर यानी कि जल राशि को रिप्रेजेंट करता है वो है कप्स का सूट। फिर जो वायु तत्व को यानी कि एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो है स्वॉर्ड सूट। एंड द लास्ट, धरती यानी कि द अर्थ एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है वो है पेंटिकल्स। अब 56 को आप 4 में डिवाइड करो, एक एक में कितने आए? 14। तो 14 वॉन्ड्स, 14 कप्स, 14 swords, 14 pentacle cards. So far so good, everybody? Difficult? Easy? Everyone? Great. Now comes the last division, which is called court cards. अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने शादी करनी है, मेरी हो चुकी है, मैं आपसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने शादी करनी है, मैं किससे करूंगी? एक बंदा होगा, उसके पापा मम्मी होंगे, आगे मेरे बच्चे होंगे, तो ये कौन है मेरे लाइफ में? द पीपल अराउंड मी। अब आप में से कई लोग अगर काम करना चाहते हो, आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम किसकी लगती है? 2 जन, स्पेशली आफ्टर मैरिज, एक योर हस्बैंड, सेकेंड योर मदर इन लॉ। द प्राइमा फोर्स ऑफ यू मूविंग अहेड इन लाइफ, या आपकी रोड का जो रोड ब्लॉकर होता है, हस्बैंड एंड मदर इन लॉ ही होते हैं। करियर की बात करो तो a woman cannot be successful in her career जब तक उसके शादी के बाद, जब तक उसके हस्बैंड और उसके मदर इन लॉ का सपोर्ट ना हो उसको। Am I right? Yes? तो ये कौन है? ये आपकी लाइफ के लोग हैं। लोग माने कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स आर द वंस जिसकी वजह से वो माइनर या मेजर इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। अब कोर्ट कार्ड्स किधर हैं? हमारे जो ईच सूट में 14 कार्ड्स आए, 56 was divided into 14 4 divisions, 14 each। उसमें से 4 कार्ड्स, लास्ट के 4 हम पता है पत्ते खेलते हैं, एवरीवन हैज प्लेड कार्ड्स, आई थिंक देयर इज नोबडी हु इज नॉट प्लेड कार्ड्स, है ना? इक्का दुक्की तिक्की चौकी करते 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 10वां आएगा, 10 नंबर का कार्ड आएगा, फिर क्या आता है? गुलाम, रानी, बादशाह, बराबर है? हम लोग उसको कलर कार्ड्स बोलते हैं, सेम एज कोर्ट कार्ड्स। 1 to 10 आर योर माइनर अरकानास in each suit। मैं वो आपको सब दिखाऊंगी, मैं सब दिखाऊंगी। Then the
card number 11, 12, 13, 14 are your court cards. ठीक, तो 4 कार्ड्स एक सूट में, माने कि 4 सूट में कितने हुए? 16 कार्ड्स. सो द फाइनल बाइफोकेशन 22 मेजर कार्ड्स, 40 माइनर अरकाना कार्ड्स और 16 कोर्ट कार्ड्स. ये सब मिला के बनते हैं आपके 78 टैरो कार्ड्स डेक. अभी आप मुझे कोई बोलेगा कि मैम किसी डेक में ज्यादा कार्ड्स आते हैं, किसी में कम आते हैं, किसी में ओरेकल वगैरह होते हैं, ये सब तरह के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे. I will deal with all these questions tomorrow. My target is to complete these 78 cards today. So anybody who did not understand or has a question, quickly raise your hand. 1 or 2 only. जब तक मैं cards को खाली align कर दूं, because मैंने cards align नहीं करके रखे थे. And those of you who have the cards, you can align it yourselves also. Anybody who wants to ask a question? वीडियो ऑफ है, मैं क्वेश्चन के लिए जगह नहीं दूंगी. ज्योति विग जी बोलिए. जी मैम, जब मैं आपका देख रही हूँ, मैं आपके प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ, लेकिन मैं समझती तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब आज फर्स्ट टाइम आपको देख रही हूँ तो आज समझ रही हूँ कि कुछ तो मैम मुझे समझ आ रही है. और मैं आपसे वैसे भी कोर्स लेने में इंटरेस्टेड थी, लगता है यूनिवर्स ने मेरी हेल्प की है आपके जरिए. थैंक यू मैम. You're more than welcome. हाँ जी, थैंक यू. भावना बोलो. भावना, I just unmuted you. आपने हैंड रेज करा है. ठीक है. भावना, you want to ask something? हाय. Hi. You want to ask something? आपने हैंड रेज करा था. अच्छा, नहीं. Okay. ठीक है. हाँ जी, सिमरन, ask your question please. Good evening, ma'am. Very good evening, dear. Ma'am, I have Oshos and cards. Are they Okay. similar? No, they are not. No, they are not. Okay, then how can I learn then, ma'am? अभी तो फिलहाल आप मुझे देख लो, एंड आप मुझे देख देख के लर्न कर सकते हो. एंड देन यू कैन ऑर्डर दीज कार्ड्स ऑनलाइन. आई विल बी सेंडिंग द लिंक टू यू. Okay. ग्रुप्स में मैं लिंक भेज दूंगी, तो उसमें आपको इजी हो जाएगा. राइट? Okay, ma'am. Ma'am, there is no class for Osho cards. ओशो होगी, इसके बाद होगी. आफ्टर वी फिनिश विद टैरो, आई एम प्लानिंग Okay. ओशो आल्सो सून. Okay, ma'am. ऑलराइट. Okay, thank you, ma'am. Thank you, darling. Yes. Who else? Nisha Agarwal. Last question and then we start. Yes, Nisha, बोलो. गुड इवनिंग मैम. बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका क्लास. मैंने ओशो जॉइन किया है, तो मैं अच्छा. सर से करती हूँ, नवल सर से. आपकी अच्छा. टीचिंग बहुत अच्छी लगी है, लगता है अट्रैक्टिव राइडर वेट के लिए. Thank मैम you. बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है राइडर वेट, अगर इजी लगेगा तो ज्वाइन करना है. थोड़ा बताइए. और क्या? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. मेरे तो काफी सारे स्टूडेंट्स यहीं बैठे, तो दे विल आल्सो टेल यू डिफिकल्ट नहीं है. इट इज जस्ट इन द माइंड, एंड उसी को आपको दिखाने के लिए ना कि देखो आप कितना इजी है, हो सकता है. यही तभी तो मैंने ये डेमो रखा है, अदरवाइज व्हाई वुड आई कीप द डेमो, है ना. यस मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है. चलिए, थैंक यू. यस, सो लेट्स. अच्छा चलो, रूपल कोहली बोलो. मेरे 1-2 कार्ड्स अरेंज करने बाकी है इसके लिए. Yes, Rupal. I'm living in Africa, and where I can get these cards? अफ्रीका में eBay ऑप्शन है. eBay में होना चाहिए. Here, like where I'm living in East Africa. So here, online e-commerce is not up to the mark as in compared to India. तो आप इंडिया से उसको कोरियर करवा सकते हो. I will ping you personally, then you can help me out. तुमने तो मुझे अफ्रीका बुला लो, मैं आके कार्ड डिलीवर करके चले जाऊंगी थोड़ा घूम फिर के. So sweet of you. I would love. I don't mind that also. ऐसे भी the moment I struck 40 मेरा ट्रैवलिंग चालू हो गया है, so I don't mind. We can do that also. You're most welcome. Thank you. So sweet of you. Yes, Jaspreet बोलो जल्दी. I unmuted you and you're talking and you're still on mute, darling. Tell me now. अरे ये फिर बोले जा रही है, अनम्यूट तो करो.
Yeah, so sorry. Actually, I'm pressing, but वो दो बार double tap हो गया by mistake. कोई बात नहीं, Yeah, बोलो। good evening, ma'am. Actually, Good ma'am, this is evening. first time I'm attending this class about tarot. अभी तक Okay. मैंने readings लिए हैं, but मुझे like कईयों ने बोला है कि you should go because astrology आपके लिए बहुत अच्छी है and all. Very good. I just have a doubt कि जैसे आपने ये जो 78 cards का बताया है, like ये क्या exactly जो आपने अभी ये तीन मेजर चीजें बताई, like मेजर, माइनर एंड कोट जो होते हैं, इनको आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? मतलब आपको कैसे समझ आता है कि कौन सा कार्ड क्या है? इज इट मेजर, इज इट माइनर? there is a thing called practice makes a man perfect. तो हम वही करेंगे, है ना? अभी तो मैं आपको सिर्फ एक झलकियां दिखाऊंगी, जस्ट लाइक यू नो, फटाफट से, एंड देन आफ्टर दैट we will and with practice you will know, मतलब the cards will start talking to you, like आपको यहाँ पता है मैं हीर हूँ, and there could be a friend of yours, maybe Preeti Khanna is a friend, and you know this is हीर, this is Preeti, so आप प्रीति को हीर और हीर को प्रीति नहीं बोलोगे, like that. Same way you will not get confused with the cards, they will kind of know you and you will know them very well. वो day one day का job नहीं है. ओके, लाइक जैसे मैंने खुद रीडिंग लिया है, तो मैंने 2 से 3 लोगों से रीडिंग लिया है, तो ऑलवेज आई गॉट डिफरेंट थॉट्स फ्रॉम एवरीवन. मतलब यस आई डू एग्री कि सबकी एनर्जीज अलग होती है, बट ऑन द सेम टॉपिक लाइक 3 अलग अलग रीडिंग्स होती है. वन इज वेरी नेगेटिव, वन इज वेरी पॉजिटिव एंड वन इज मॉडरेट. तो व्हाट विल यू ट्रस्ट? आई मीन किसको आप सही मानोगे एंड ये कितना एक्यूरेट समझ आता है? हाँ, टैरो रीडर्स शुड ऑलवेज बी लाइक अ वकील. जैसे आपके पास गॉड फॉरबिड किसी को वकील की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर कभी आपको जैसे डॉक्टर चाहिए या वकील चाहिए, तो यू डोंट गो हॉप स्किप एंड जंप, चलो आज ये डॉक्टर ट्राई करते. इट्स नॉट लाइक अ रेस्टोरेंट, यू नो. टैरो रीडर्स को रेस्टोरेंट की तरह नहीं करना चाहिए, चलो आज ये क्यूजीन ट्राई कर, चलो आज ये टैरो रीडर ट्राई करते. यू विल बी ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द यूनिवर्स. Once you make a trust over somebody, whenever you have a problem, trust कैसे develop होता है? I've just posted videos on that though, but you have to see where the tarot reader or the occultist is taking you in life, as in उसकी रीडिंग्स आप पे कितनी सही बैठी है. नॉट नेसेसरी कि नेगेटिव सही नहीं होंगी, हम नेगेटिव टैरो रीडर पास नहीं जाएंगे, वो हमें सिर्फ नेगेटिव रीडिंग देती है. पर अगर कोई गलत आपको बता रहा है, जैसे आज मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, इट इज नॉट अबाउट टैरो, जस्ट जनरली शेयरिंग इट विद जस्ट 1 सेकंड. या थोड़ा सा कुछ था. So she came to me and she had XYZ issues in her kundli and she wanted to marry the guy she loves, and घर वर में बात तक पहुंच गया था and all that, and they were preparing to marry, and I said I will not say a yes to this marriage. तो वो थोड़ी सी बौखला गई थी. Maybe, and I told her, maybe you're hating me on the call right now, but it is my job to tell you the truth. All right. And the card also said, मतलब मेरे कुंडली से भी मैंने देखा, कार्ड से भी देखा, and I strictly said no. बोलती मतलब मैम हम रेमेडीज कर लेंगे. मैं तेरे को रेमेडीज के बावजूद इतना बड़ा दोष है, मैं तेरे को हाँ बोल ही नहीं सकती. And see, this is against me. But if you want to believe, don't want to believe, you want to come back to me or not, is your. अभी कोई और टैरो रीडर बोलेंगे चलो इससे पैसे ऐंठने हैं तो हम इसको रेमेडीज करवा देंगे. In fact, people will say yes for such a wedding, because the moment she gets married, she's going to face trouble. आपने ऐसे मच्छी को दाना डाल दिया, वो घड़ी घड़ी आपके पास आएगी, आपकी दुकान चलती रहेगी. So you are eating at someone else's expense, which is by far the worst thing to do in any field, and especially in occultism. You like ma'am, I've seen few people say कि आप वो love spell करवा लो, वो करवा लो, आपका नहीं भी होगा तो वापस आ जाएगा. I mean, I see so many things on Insta day-to-day basis. It is ridiculous, and I openly say that it is 100% ridiculous, because I'm not saying कि वो नहीं होता. ये सब चीजें होती हैं, असर भी होता है, but in my view, I don't practice what is not right. मैं वो कभी practice नहीं करती, and I never preach about it. Do you also teach all these things like love spells and what spells? Never ever. In fact, मेरा सर्किट घूम जाता है पूरा 360 डिग्री भी नहीं, 720 डिग्री. So I never ever talk or discuss or do anything about it. It's completely wrong. And ma'am, one last question. Like astrology has fixed thing. Like whichever pandit you go, they see your kundli, everything is fixed there. I mean, वो बोलते हैं ना कि चार्ट पूरा कंफर्म है, मतलब आप किसी भी पंडित के पास जाओ वो उसी के थ्रू बोलेगा. But tarot card is not fixed. Like
every time you pull a card, like if I'm going to a single tarot card reader only, like अभी मैं आपके पास आई हूँ, अभी आपकी जो इंट्यूशन है आपने उस हिसाब से मुझे बता दिया, हो सकता है 1 वीक के बाद इसी चीज के ऊपर कुछ और कार्ड आए, आज जो पॉजिटिव था वो 1 वीक के बाद नेगेटिव हो Same जाए, thing happens तो in ये चीजें astrology कैसे also. होता है? Same thing happens in astrology also because astrology fixed chart है, आपका है, but वो तारे सितारे तो घूम रहे हैं ना, तो ऐसा This नहीं is है what कि कुछ भी comparison I fixed है. wanted to know. See, change is constant, whether it's life, tarot, astro, or whatever. Change is constant. The energies change, planets change, people's mindset change. Suppose today I have a breakup with a guy. मैं आज रोऊंगी पिटूंगी, मैं आपके पास आऊंगी, आप मुझे समझाओगे हीर ये नहीं, बट मुझे वही चाहिए. मेरा माइंडसेट ये है भैया, मुझे वो छोड़ गया, ये हो गया, मुझे तो वही चाहिए. बट आफ्टर अ वीक, जब तक मेरा इक्विलिब्रियम नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे दिखेगा कि that person was not worth it. And then I come to you, I will say मैं इससे निजात कैसे पाऊं, मेरे को चाहिए नहीं है बंदा, तो आप बोलोगे ऐसे कैसे हुआ? भैया मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, उसकी कोई ट्रुथ मेरे सामने आई होगी. I must have seen my own value better at that point, which I was not seeing a week back. You getting me? So things change. Your mindset changes. And that is what tarot picks up. So I think Jasprit, we are done with the questions right now. Thank you. Thank you so much. Now, you're welcome. Question answers pe aayenge. Let's cover the cards for which we are here. Mute yourself. Yeah. Everybody, please put your hands down and cameras on. Okay? Let me see all of you all and get a little more motivated seeing you all. है ना? चलो. So, the major arcana cards, a quick review onto all cards. अगर आज में cards cover हो जाएंगे वैसे, we have 40 minutes, 35 minutes, let's finish it. This is the first card of tarot, which is the Fool card. ठीक है, ये Fool card हमें ये बताता है, it's the start of any journey. जब भी आप ये कार्ड आपके सामने आएगा ना, सपोज आज मैं किसी एरीज वाले की रीडिंग कर रही हूँ, आंख बंद करके न्यू बिगिनिंग, आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, देयर इज अ न्यू थॉट इन योर माइंड. नाउ व्हाट एम आई रीडिंग फॉर? मैं इसमें थोड़ा टाइम लगाऊंगी, उसके बाद हर कार्ड अपने आप सेल्फ अंडरस्टैंडेबल लेवल पे होगा. एम आई डूइंग अ रिलेशनशिप रीडिंग? New relationship. Am I doing a career reading? A new career is going to come up. It's a new opportunity. Am I doing something about exams? A new आप exam से flying color में आ जाओगे. So whatever is the query. अच्छा, टैरो में past, present, future होता है. आपको past में, अगर ये कार्ड past में आता है, you had few opportunities sometime back. Whatever the timing be, we are not discussing timing here. Present, you are having, someone has given you an opportunity. Yes. Future, there are opportunities going to come your way. तो मैं past, present, future में से कहां पर इस कार्ड को लेकर आ गई फूल को, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ? Is it the love context, marriage context, health context, or which is the area of? अब देखो, मैं आपसे आके बात कर रही हूँ, this is the mistake what many tarot readers make. मैं आपसे आके बात कर रही हूँ, फलाना, okay, the same thing. I've just had a breakup with somebody. How do I deal with it? Are you thinking of starting a new career? Did I ask you about my career? काहे वहां पे गए? मेरा क्वेश्चन तो बंदे के ऊपर है ना. So stick to relationship. Why are you talking about a career? This also shows a baby. I am not married, but she will say, baby आने वाला है. कहाँ से? मतलब कुछ भी तुमको घुसेड़ना, बिकॉज इट इज गिवन, इट इज द एसेंस. न्यू बिगिनिंग, मैम ने कहा था न्यू बिगिनिंग, तो न्यू बिगिनिंग बच्चा भी होता है. चलो बच्चा, क्वेश्चन तो देखो बंदी का क्वेश्चन क्या है. ऑलराइट, क्वेश्चन देखा नहीं तुम अपना, न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग डालो. शी जस्ट हैड अ ब्रेकअप यार, तो उस पे टॉपिक पे डिस्कस करो. अच्छा, वो दूसरी ये भी बोलेगी नया आएगा कोई तो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द पर्सन टू कम बैक टू यू? So new beginning, yes, उसी बंदे के साथ न्यू बिगिनिंग भी तो हो सकती है. आ जाएगा ना वापस, तुम्हारा सब सॉर्ट आउट हो जाएगा ना. Doesn't this seem more reliable, ethical and a more better way to see this card? Yes. नया बच्चा होगा, नया रिलेशन आएगा, करियर आएगा. That's not the question. All right. So as a reader, the first thing, be a good listener. Be patient for the other one to finish. मेरा ना ब्रेकअप हो गया. हाँ हाँ, लड़के सारे ऐसे ही होते हैं. Who told you to have all this? All men are like that only. Did she finish? Why are you forcing your judgment? पहले सुन लो, समझ लो उसका क्वेश्चन क्या है, and then go ahead.
This is the first step to being a good tarot reader. Next card, the magician. Magician क्या बताता है? सबसे पहले magician as in magic. Magic क्या होता है? जादूगर. जादूगर का सार क्या है? What is the essence? जो जादू दिखाता है. Whenever as a child you have gone to a magic show, you know वो पागल बना रहा है. You know it. Dynamo is the world's best magician. He looks like an ice cream stick, very thin, very this. But my God, that guy is magic. Please Google him. You see his YouTube videos. Those of you who have not seen Dynamo, he is too good. All right. You know that they are creating magic. वो तुमको पता है लड़की को काट के ऐसा जो कर रहा है वो लड़की जिंदा है, वो मरी नहीं है, but हमको दिखता है. Means someone who can make you believe in things, whether good or whether bad, depends. If this comes as a person's strength, अभी strength, weakness, obstacle में भी कार्ड जाते हैं. Position ना. अब what? How many of you all are already teachers here? लगा लो 4 लोग आप लोग teachers हो. Okay, you all are teachers. You all are already trainers or whatever. Suppose Nidhi put her hand up right now. You all are already teachers. But यहाँ teacher कौन है? मैं हूँ. Position teacher की किसकी है? मेरी है. आपकी क्लास में आपकी होगी, कल मैं निधि आपकी क्लास में आ जाऊंगी तो मैं स्टूडेंट बन जाऊंगी. तो ये पोजिशन ऑफ द कार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्रक्स इंपॉर्टेंट. ये कौन सी पोजिशन पर है? स्ट्रेंथ. आपको दूसरे को बिलीव करवाना आता है. People believe you. Weakness, people don't believe you. People are not able to trust you. Obstacle, your belief and faith is a problem. Point वही है. Position of card के हिसाब से it will change. Another keyword for this card is communication. He is a master communicator. Have you ever heard any motivational speaker, for example, Sadhguru, for example, Sandeep Maheshwari? You will get lost in their words. They will motivate every ounce of your blood. They'll stir something up. That's the power of the magician. They have that magic. Am I right? Next, card number 2, High Priestess. She is the goddess of tarot. She is the empath, she is the mother, she is everything about education, travel, study. She has the power of occultism. On the flip side, she's a very cold and a dry-natured person. Every card has a good side and a flip side. The Empress, she is the Rani. She is the Queen. I call her the Lakshmi card. इसमें इतना पावर है कि ये जो चाहे वो कर सकती है बैठे बिठाए. Very well, she is seated in her place of comfort and she gets everything at her hand. सजी धजी सुंदर सी लड़की औरत whatever. Feminine energy. Suppose a man comes to me and also this is a card of motherhood, a pregnancy card. एक आदमी मेरे पास आता है, मैडम tell me something about me. Empress, तू तो जनानी है. Can I say that? जनानी समझते औरत है. मैम ने सिखाया फेमिनाइन कार्ड है. तूने आदमी के भेस में तो औरत है. मेरा नाम डुबाओगे तुम लोग. फेमिनाइन एनर्जी. He could be a शौकीन आदमी. अब कुछ आदमी होते हैं हाथ में सिर्फ एक माता रानी का धागा पहना होता है 15 साल से, ना अंगूठी पहनते ना चेन पहनते ना अपने आप को ग्रूमिंग करते नहीं कुछ करते. They don't dare like पार्लर सलोन कौन जाता है? छी. बाल भी ना घर में कलर कर लेते हैं, साल में एक बार ऐसे वो हेयर कट कराने के लिए कभी किसी धूपछांव वाले सलोन में चले जाएंगे. They spend least on them. The brands, I don't know what brand is. Some men, they have regular salon appointments, manicure pedicure करवाते हैं, color salon में करवाते हैं बालों को. They are prim and proper. They wear perfumes. They wear अंगूठी. Example, Bappi Lahiri ji. He used to dress up. Yes, wear branded clothes. So he, you can say, was the Empress, the feminine energy. This does not mean the person is a woman. This means it is a feminine energy. अब एक आदमी आएगा, मैडम मेरा फ्यूचर बताओ. आप तो माँ बनने वाले हो. मैम ने बोला ये बच्चे का कार्ड है, प्रेगनेंसी कार्ड है.
और वो आदमी 60 साल का होगा। ऐसे छित्तर पड़ेंगे ना आप लोग अगर आपने ऐसा कुछ अटेम्प्ट भी कर दिया। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। A new baby could also mean that man is concerned about his children. He could be concerned about his wife. Empress उसकी wife हो गई. He could be having इच्छा of having a new business. Don't you see men say कि this is my new baby, a new business, right? So everyone has got a hang of this. How does this work? The emperor. Emperor का मतलब क्या होता है? Someone who is structured, stable, just like a grandfather. दादाजी कैसे है? देखो उसकी दाढ़ी बूढ़ी है ना, बूढ़ी दाढ़ी है, व्हाइट दाढ़ी है। दादाजी कैसे होते थे? हमारे घर की रिवायत ऐसी होती है, परंपरा, प्रतिष्ठान, ब्ला 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 ब्ला। मतलब जो इसके भारी भरकम वर्ड्स की तुमको मीनिंग भी नहीं मालूम। खुद भी 6 बजे उठ के बैठ जाएंगे, बहू को आधे आता घूंघट उठा के 5:30 को बिठा देंगे। हमारे घर की बहुएं ऐसी करती हैं। सो द प्रोटोकॉल मेकर, कह दिया ना, बस कह दिया टाइप्स, वेरी मैस्कुलाइन। अब कोई आंटी आएगी उसको अंकल मत बोल देना ये कार्ड देख के। दिस मीन्स शी इज द प्रोटोकॉल मेकर ऑफ द हाउस। शी इज द वन हु लाइक्स द प्रतिष्ठा, parampara and all that kind of stuff. Understood? He is a hard-working person. So, someone who is hard-working, someone who loves to put in their best for their family. Now, the Hierophant. Hierophant is the padri, यानी कि the priest at the top position possible. कोई ऐसा है जो मंदिर जाता है पंडित जी के पैर नहीं छूता? तो माने कि ये इंसान की बहुत रिस्पेक्ट है, लोग इसको लुक अपॉन करते हैं। सर, जैसे आप बोलो सर। फॉर एग्जाम्पल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता, उसके सामने ने मेहता साहब ने बोला ऐसा ही करना, मेहता सर आपने जैसा बोला वैसे ही करना। ही इज द अल्टीमेट कॉल, लाइक दैट। अ वेरी गुड कंसल्टेंट। लवर्स, someone who is in love, someone who loves love, someone who loves choices, and someone who is very Venus drawn, very luxury drawn. Okay, so lovers talks about love, relationships, partnerships. The Chariot, इस पे गौतम बुद्ध की स्टोरी अप्लाई होती है ना। गौतम बुद्ध was the one who was never shown the reality of life, and जिस दिन उन्होंने reality of life देख ली, and he left his princely state and walked away in search of enlightenment or the truth. So someone who is on the move all the time, in a literal sense, buying a car, traveling, moving away, someone who needs to move out of their comfort zone. All right. Chariot in Hindi literally means rath. Rath समझते हो? जिसपे जैसे आप महाभारत और रामायण वगैरह देखोगे तो नहीं, मतलब रथ पे जाते थे, the kings and their people, रथ पे जाना. So very kingly person. Strength. Strength talks about courage. ये एक animal है which looks like a lion, is a lion but has become a dog. If you see very closely, see this. Is it possible humanly for any person to go, even if it's your lion who's a pet, जो आजकल कई लोग रखने लगे हैं, lion और tiger को pet रखते हैं, उसके मुंह में हाथ डाल के ऐसे एक हाथ उसके मुंह के अंदर, एक हाथ उसके ऊपर, not possible. But she's doing it. When you are in love with someone, true blue love, it makes you strong as a person. आपका प्यार उस इंसान की strength बन जाती है. They are lost into each another. Right? So a very beautiful give and take of power and strength in form of love and courage. Hermit. Hermit is the yogi or the guru, the spiritual guru. Someone who is standing on the Barfila mountains. So he is at a very high stage and a place. Example, Osho. Osho was a guru. He was a mentor. He was the one who was ready to share his spiritual light to people, to the mankind. That is Hermit. The next card is the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune card number 10. Wheel कैसा होता है? गाड़ी का पहिया आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है. ठीक है? तो ये गाड़ी का पहिया माने कि एक इंसान, on a literal terms कह सकते हैं कि एक इंसान को बड़े सारे mood swings है. ठीक है? आपकी गाड़ी का पहिया आगे चलने वाला है. कई लोग मानते हैं जब गाड़ी को स्टार्ट करो कभी भी रिवर्स में डालो, जरा सा आगे लेके जाओ फिर रिवर्स में लेके जाओ. जब भी ये कार्ड आता है, दिस कार्ड shows blessings and good luck. Also karma. You are going to be getting what karma is going to give you.
द जस्टिस कार्ड, जस्टिस माने हमें क्लियरली दिखता है, जस्टिस यानी कि जज, जजमेंट, कोर्ट रूम्स। सो अगर वो आके पूछता है मेरी शादी किस तरह की होगी, किस तरह की शादी होगी? कोर्ट मैरिज। और वो हायरोफेंट में कैसी होती? पंडितों वाली ट्रेडिशनल मैरिज, है कि नहीं है? ये कोर्ट मैरिज है, बाय साइनिंग द पेपर। करियर में क्या होने वाला है? यू कैन बी अ वेरी गुड लॉयर और अ जज फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, आगे आप देखो मेरे साथ लाइफ में क्या होने वाला है, कोर्ट केस हो सकता है, फॉर्जरी हो सकती है, सब बच के रहो, थोड़ा सा बी केयरफुल, है ना, स्पेशली इफ इट कम्स इन अ कॉम्बिनेशन विद अ नेगेटिव कार्ड। द हैंगमैन, हैंगमैन वो है, मैं इसको गोविंदा बुलाती हूँ, पीले जूते, हरी शर्ट, लाल पैंट, इट इज ओनली गोविंदा पॉसिबल। Alright, so and I really ascertain Govinda because just recently मैंने उसके वो पिक्चर देखी, राजा बाबू। I was in the flight, मुझे कोई मूवी समझ ना आया तो मैं राजा बाबू देख रही हूँ, people were looking at me कि किस तरह की पिक्चर देख रही है, but I had no option and I watched राजा and I watched the whole one, गाने फॉरवर्ड कर करके। but वो गाने में भी जो भाई साहब ने कपड़े पहने, it's just this, किसी को पल्ले नहीं पड़ता, तो ये बंदा भी किसी के पल्ले नहीं पड़ता कि क्या करना चाह रहे हैं। It's like I'm on the wall, neither do I go left nor do I go right. एक लड़की पूछती है, सामने वाला मुझे बोल रहा है शादी करेगा, है आजकल का बड़ा बड़ा कॉमन टॉपिक है, मुझसे कह रहा है शादी करेगा, कब करेगा? हैंडमैन आ गया, करेगा शादी, कौन हाँ बोलता है? मुंडी हिलाएगा, कौन हाँ बोलता है? मैडम को लटका के रखा है, तू लटक। कई लोगों को इसमें मजा आता है, they want to see other people hanging, so someone who's left hanging, झूल रहे बीच में। और इसको क्यों मजा आ रहा है? अगर कोई मुझे, अच्छा आप में से जो लोग शीर्षासन करते हैं, एक तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे टांगे ऊपर पहुंचती है, फिर कोई तुम्हें पकड़ के खड़ा कर ताकि तुम धम करके गिरो ना, तुम्हारी हड्डियां ना टूटे। और जी अगर तुम खुद खड़े हो भी गए उल्टे फिर भी ठीक है, तो दोनों टांगे भी तुम ऐसे लगा, ऐसे ऐसे हवा में लगा के रखोगे कि बाई चांस ना नीचे गिर जाए। और इसने टांगे कैसे रखी है? उल्टा लटक के, एक के ऊपर एक, आई एम एट ईज, माने कि इसको मजे आ रहे दूसरे को लटका के। कार टॉक्स एवरीथिंग, everyone agrees now, especially the new ones? Yes, it actually talks, you have to just understand their language. अब मैं अगर तमिलनाडु चली जाऊं, तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? सम साउथ इंडियन लैंग्वेज, आई एम नॉट वेरी श्योर, और मुझे साउथ इंडियन लैंग्वेज ना आए और उन भाई साहब को हिंदी और इंग्लिश ना आए, तो कम्युनिकेशन हो पाएगी? लगा लो मुझे वहां शिफ्ट हो जाना पड़े। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई हैव टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, देन एवरीथिंग इज इजी। सेम वे टैरो लैंग्वेज होती है, राइट? बस वो लैंग्वेज को समझ गए। सॉरी, वी टॉक अबाउट लैंग्वेज एंड माय पेट स्टार्ट्स एनीवे, ठीक है। सो द नेक्स्ट कार्ड, डेथ। डेथ डजंट नेसेसरली मीन किसी का मर जाना या डेड हो जाना, इट डजंट मीन दैट। वी से मेनी टाइम्स the plant is dead means you are watering a dead plant, you know, ये सारी कहावतें आती कहाँ से आती हैं? एक प्लांट मर चुका है, सड़ चुका है, हम क्या करेंगे? उसमें खाद डालेंगे, दवाई डालेंगे, उसको रिवाइव करेंगे। क्या वो रिवाइव होता है? बांस मारेगा, कीड़े पड़ जाएंगे, इन शॉर्ट सारी प्रॉब्लम होगी, बट वो रिवाइव नहीं होगा। सो व्हाट इज द बेस्ट वे आउट? लेट इट गो। Whenever this card comes, whatever the question, it is dead, सड़ चुका है, let it go. Let the old go for the new to come is the death. Okay. Temperance, a beautiful card. A lady who's balancing two things. This is a beautiful amalgamation of the earth and the fire. I'm sorry, the earth and the water elements, and a amalgamation of two worlds together. Amalgamation माने कि merging, combination. अगर हम गीली मिट्टी पे और पानी डालेंगे, क्या बन जाएगा? दलदल, तो वो खराब हो जाएगा। अगर हम सूखी मिट्टी पे थोड़ा सा पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मिट्टी जरा सी गीली होके प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, ग्रोथ होगी। तो नोइंग द करेक्ट बैलेंस बिटवीन टू वर्ल्ड्स, टू सिचुएशंस, राइट? अब अगर लगा लो मेरे पास हाउस हेल्प नहीं है सपोज, और मेरे इन लॉज, जेठ जेठानी सब लोग बाहर बैठे और किसी ने नहीं, हीर ने आज खाना बनाना, बट हीर यहाँ पे काम कर रही है,
लगा लो हमारी क्लास 10 तक चलेगी, तो मुझे तो बाहर जाके गालियां पड़ेंगी ना, भाई तुम काम करो, खाना तो बना के जाओ, तुम्हारी ड्यूटी है. तो आई विल हैव टू लर्न द बैलेंस, maybe by time management, maybe by whatever. So there are many times in our life जब हम moderation नहीं ला पाते चीजों में, हम एक ही दिशा में बहुत ज्यादा घुसते डीप में चले जाते हैं. That is the lack of balance, which is why ये कार्ड आता है टेम्परेंस, बैलेंस, द डेविल कार्ड. ये सबसे ज्यादा ड्रेडेड कार्ड है हमारे टैरो में. बेचारे को सब लोग नफरत करते हैं, कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं है. Oh my God, डेविल, नो मा बनो, इट इज अ वेरी बैड कार्ड. हर एक को लगता है खराब है, बट उसको पता है, जैसे शेर चुपचाप बैठा है उधर, तुम एक जंगल सफारी पे गए हो, शेर चुपचाप बैठा है, को करने का, तुम करके बुलाओगे वो आएगा, तुमको सहन होगा? कौन कौन भाग जाएगा वहां से? और अगर पीछे तुम्हारे हाथी और आगे तुम्हारे शेर, तो तुम कहाँ गए? तुम तो कुचले जाओगे. तो करके बुलाने का नहीं, इसको छेड़ना नहीं होता है बेसिकली. यू आर नॉट सपोज टू छेड़ो दिस गाय. छेड़ोगे ये मारेगा, बिकॉज ये मौका परस्त इंसान है. इसको मौका मत दो. ये तो वही बात हुई ना, टीचर, तुमने पूरे साल ऐसे हवाइयां उड़ाई हैं, लास्ट डे पे बैठ के तुमने बोला मैं पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ने के टाइम पे तुम्हारे को पैनिक अटैक आ गया. माय गॉड, इतना सारा पढ़ाई. अगले दिन तुमने वहां जाके झक मारी है एग्जामिनेशन हॉल में, और वापस आके बहुत अच्छा पेपर था, पेपर वाज वेरी गुड, एवरीथिंग वाज नाइस. एग्जाम रिजल्ट्स के टाइम पे एग्जामिनर ही गलत था, मेरे को तो पेपर ही ऐसे करा. तुम्हारे साथ एग्जामिनर गलत, तुम्हारी गलती यही नहीं. इट्स लाइक ब्लेमिंग समबडी एल्स फॉर योर ओन फॉलिस. That's also a part of devil. The Tower. The Tower is a card which shows inevitable नुकसान. नुकसान तो होगा. नुकसान माने जो क्वेश्चन पूछा उसमें नुकसान होगा. हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, जान मान हानि, whatever, हानि तो होगी. तो ये कार्ड पे हम क्या कहते हैं, जब तुम्हें पता है कि बाहर तूफान चल रहा है, तो घर बैठ के पकोड़े खाने का और टांग पे टांग चढ़ा के बैठ के तूफान देखने का, अंदर से तुम्हारा घर सिक्योर है. कुछ लोगों को ना बहुत खुजली होती है, वो लोग क्या करते हैं, बाहर तूफान है, जरा मैं देख के तो आता हूँ, मुझे कितना बहा ले जाएगा तूफान, चैलेंज तो तूफान, फिर बुक तो. जब किसी ने तुमको बोला कि नुकसान, जैसे मैंने लड़की को बताया कि उस बंदे से शादी मत कर, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, उसने मेरी नहीं सुनी और शादी कर ली, तो मैं बोलूंगी ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है कि तब मैं देख लूंगी. अब पक्का देखोगे, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम. अब वो कितना नुकसान होता है मैं नहीं जानती, आई कांट असर्टेन दैट, पर नुकसान होगा. ठीक. द स्टार कार्ड. स्टार माने अप्रिसिएशन, फेवरेटिज्म. आप किसी की आंख में सितारे की तरह दिखते हो, कोई आपको अपनी लाइफ का सितारा मानता है. This could be career, this could be love, this could be anything. Star is a blessing, it's a beautiful card. Next is the moon. अब चंद्रमा कैसा होता है, आधा घटता 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 बढ़ता बढ़ता बढ़ता. ठीक. जैसे चंद्रमा है, it doesn't have a stability. This card shows lack of stability. Psychic abilities भी ये कार्ड दिखाता है, intuitive abilities भी बताता है. Alright. The next card is the sun. जैसे हम कहते हैं सवेरे हो गई, उठो, good morning, everyone says good morning, right? So good morning माने कि हर चीज अच्छी होनी. सन को देखे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एक नई सुबह. कभी किसी ने बोला एक नई रात आई है, एक नया चंद्रमा आया है. Anyone says that? Anyone says, any मम्मी says to the बच्चा, चल चल रात हो गई, चंद्रमा आया, चलो अभी काम पे चलते हैं, चलो शॉपिंग चलते हैं. राधा मम्मी लोग क्या बोलते हैं, देख बेटा अंधेरा हो गया, घर चल, सूरज डूब गया, घर चल. वो अपना घर गया, तुम अपने घर आओ. चंदा मामा ऊपर है, उसके ऊपर तुम अपने घर पहुंच जाओ. माने कि not a very auspicious time. Which one? Moon. ये auspicious time. This card shows hope and positivity. Good time coming up. Judgment. Death card क्या था, डेड हो चुका है जो चीज, उसको जाने दो. लेकिन हर प्लांट फुल्ली डेड नहीं होता, कभी कभी आपको उस पर CPR देना पड़ता है, वो रिवाइव हो जाता है खाद डाल के. कभी कभी वो प्लांट के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसे खराब कर रही होती है, वो चीज निकालो तो हमारी लाइफ सुधर गई, प्लांट सुधर गया. दिस इज चेंजेस फ्रॉम विद इन. डेथ बोलता है उठाओ, उखाड़ो, फेंको, चाहिए ही नहीं.
ये बोलता है उठाओ उखाड़ो फेंको से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर चेंजेस लाओ. सो दिस टॉक्स अबाउट चेंजेस फ्रॉम विद इन. एक लड़की आके बोलेगी मैडम अफेयर है, बार बार अफेयर होता है, बार बार टूटता है, लोग है ना मुझे समझते ही नहीं है, माँ बाप भी मेरे अगेंस्ट है, भाई बहन भी मेरे को ऐसा करते हैं, सासू माँ भी ऐसा करती है, बच्चे भी ऐसा करते हैं, हस्बैंड भी, मतलब पूरी दुनिया पागल है, तू सुधरी हुई है और तू सीधी है. हाउ? राइट? दोज ऑफ यू प्रैक्टिस प्रोफेशनली ऑल विल नो मेनी टाइम्स ऐसे लोग आते हैं. आप क्या करोगे ऐसे इंसान को? नहीं बेटा, हाँ पूरी दुनिया ही खराब है, अपने आप को सुधारो. Bring changes from within, and on the outside everything will change. That is the judgment card. And the last card of the 22 major arcanas is the world card. ये card हमें completion बताता है, following your passion and travel. कोई ऐसी एक चीज जो complete होने वाली है. And with this we finish with the major arcana cards. Quickly let's go. I have not asked for questions. आज question answers करने नहीं मिलेगा, question answers कल होंगे क्योंकि अब तो हमारे कार्ड्स भी पूरे नहीं होने वाले. So quickly let's do the wand suit. अब wands का जो सूट है इसमें हमारे पास 14 कार्ड्स है, right? Everybody, ये तो मैं खाली आपको एक क्विक व्यू दे रही हूँ, बाद में तो हम जब पेड कोर्स होगा तो आराम से एक एक कार्ड के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी. Every first card of the 4 suits. Now these are certain points for me to make you understand. पहचानोगे कैसे? जितने हमारे मेजर अरकानास हैं इन पे ऊपर रोमन नंबर लिखा होता है और कार्ड का नाम नीचे लिखा हुआ होता है. क्लियर? अंडरस्टूड? अब जितने हमारे मेजर कार्ड्स, अपना माइनर कार्ड्स होते हैं, एसेस होते हैं. एस माने नंबर 1. नंबर 1 इज न्यूमेरो उनो. एस ऑफ वॉन्ड्स नीचे लिखा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो मेरे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स है. ये चारों कार्ड जो एस होते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ये सब लिखा हुआ होता है. और यहाँ पर यूनिवर्स का हाथ होता है होल्डिंग दैट सूट. वॉन्ड्स माने लकड़ी, अ स्टिक, ये रहा. और इसमें ऊपर कोई नंबर नहीं होता यहाँ पे एस में. ये फॉर एग्जांपल 2 ऑफ वॉन्ड्स है. अब यहाँ नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ रोमन नंबर आएगा. इसका मतलब हमें 2 वॉन्ड्स दिख रहे हैं. जैसे नंबर बढ़ते जाएगा पिक्चर में 3 वॉन्ड्स आ जाएंगे, नंबर बढ़ेगा पिक्चर में 4 वॉन्ड्स आ जाएंगे. तो आपको दिख जाएगा. जैसे हम कहते कैसे, हाउ डू वी रेफर टू इट? एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक दैट. Major arcana remains the Fool card, the Magician, the High Priestess. This is the way we refer to the cards. ठीक है? So the Ace of Wands. Wands यानी कि fire suit है. Fire कैसा होता है? जिंदा दिली, attraction, creativity, something zingy. चलो 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 जगह चलते चलते चलते. Excitement. Aces are always new beginnings. कोई नया ऑफर, कोई नवी चीज आपकी लाइफ में होगी, कोई ऐसा इवेंट आएगा which will give you a lot of excitement. 2 ऑफ वॉन्ड्स. 2 माने कि हमेशा डुअलिटी. 2 यहाँ पे क्या देगा? कोई नया सेकंड का सिस्टर कंसर्न होने वाला है, ट्रैवल होने वाला है, आप कोई नवी चीज चूज करने वाले प्लानिंग स्टेज पर है. 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़ा सा फटाफट होगा बिकॉज इज अ माइनर कार्ड, सो दिस आर ऑलवेज वेरी क्विक. 3 ऑफ वॉन्ड्स इज द प्लानिंग से एग्जीक्यूशन का स्टेज. आपने प्लानिंग कर लिया, मैंने प्लानिंग करा, मैंने टैरो का डेमो रखना है, मैंने मेरी प्लानिंग करी, मेरे टीम से बात करी, XYZ. अब मेरा एग्जीक्यूशन चल रहा है, which is right now, which is why I'm here. Execution is always towards the future. 4 of Wands is literally the home. ये घर है और यहाँ पर आप बात कर सकते हो something to do with family, something to do with a family occasion. 5 of Wands, confusion. एक कॉन्फ्रेंस टेबल पे, जैसे हमने जब क्लास शुरू की तो सब लोग कैसे एक साथ में बात कर रहे थे, आपने बोला मैम म्यूट करो, कुछ समझ नहीं आ रही, और 5 ऑफ वॉन्ड्स था. हर कोई अपनी बात बोल रहा है लेकिन समझ किसी की कुछ नहीं आ रही. 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये दूल्हा है जो घोड़ी चढ़ा है, लिटरल कार्ड टू गेट मैरिड. ठीक है. 7 ऑफ वॉन्ड्स, हार्ड ट्राई करना किसी चीज के लिए. जैसे हम तो बॉम्बे में रहते हैं, अभी आप लोग जहाँ जहाँ रहते हैं आपके पास एक कोई फेरी वाली मार्केट होगी. फेरी वाली मार्केट में कैसे होते हैं, मैडम ले लो, मैडम 100 रुपए का, मैडम आपके लिए 90 कर दूंगा मैडम. वो कैसे आपके फेस पे आते हैं, दे ट्राई टू सेल समथिंग एंड you're like, नहीं भैया नहीं चाहिए, जाओ प्लीज जाओ, तो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है. राइट, ये वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स. Trying something and not getting it, so hard trying about it, and then hard try करने से frustration होना. 8 of wands, यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, no human, nobody, just wands. Travel, quick plans, something that happens out of the blue. ये क्या हुआ suddenly, my God, wow,
सडन सब कुछ आपकी गोदी में आके गिर जाएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये बेचारा फॉर एवर टेंशन में रहता है। ये बेचारा बोलता है यार मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको प्रोटेक्ट करूं, मैं क्या करूं, इनसिक्योरिटी इश्यूज। 10 ऑफ वॉन्ड्स, दुनिया के बोझ का मारा, इसको दुनिया का इतना सारा बोझा है, खुद का तो काम है ही, दूसरों का भी काम इसने सर पे लाद के रखा हुआ है। अब ये 10 कार्ड्स के बाद आपके शुरू होते हैं कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स में जैसे कि पहला कोर्ट कार्ड है जिसका वैल्यू 11 है, नीचे लिखा हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। जैसे हमने वो किया था एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वैसे ये पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज सबसे पहला, नेक्स्ट इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड फोर्थ यानी कि 14 नंबर, 11 is page, 12 is knight, 13 is queen, and 14 is king of wands. Pages are always standing, all the 4 pages are always standing holding their suit. अब वो लोग किस तरह से खड़े हैं और किस तरह से अपने सूट को पकड़ा है उससे डिपेंड करता है कि वो पेज के साथ चल क्या रहे। पेजेस आर ऑलवेज चिल्ड्रन or the younger ones, the ones below the age of 25. Education वाले जो बच्चे होते हैं, हमारे जो messengers होते हैं, these are always the messengers, the pages. Next is the knight of wands. Knights are always on the horse, holding their suit. इनके पास एक एक सूट ही होता है, सबके पास एक ही नंबर में होता है। ये जिस तरह से इनका घोड़ा बिहेव करता है बताता है कि नाइट के साथ क्या चल रहा है, what is really happening. Then the queen, and हाँ जो नाइट्स होते हैं वो मैरिजेबल एज होती है between 25 to 40, and they are the workers, they are the ones who are the main right hand of the king. ठीक है, ये वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स यानी कि आप लगा लो इसको हम और क्या कह सकते हैं, सेनापति जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्वीन। क्वींस आर ऑलवेज मैरिड, इट इज द फेमिनाइन एनर्जी। ओके, दे आर द मदर्स और दे आर द होम मेकर्स। ठीक है, and they are always sitting on a throne. अब वो जिस तरह से बैठी है, जहां पे देख रही है उसका थ्रोन कैसा है वो बताएगा कि इस क्वीन के साथ चल क्या रहा है। Then comes the king. King is always the masculine energy, always again sitting on a throne, holding their suit. How they are sitting, उसका थ्रोन कैसा है वो डिपेंड करेगा कि किंग कर क्या रहा है। अभी क्लियर? पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बताएगा? मैसेंजर ऑफ समथिंग एक्साइटिंग, कुछ एक्साइटिंग की न्यूज आने वाली है, कि बच्चे को लेके कोई अच्छी एक्साइटिंग न्यूज आ जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवलर कार्ड है, ये कहीं भी ये भवरा है, ये जगह नहीं बैठेगा। बंदी आके पूछती है क्या मेरा वाला बंदा मुझसे प्यार करता है, आपको देख के एक्साइट जरूर हो जाता है, पर प्यार जैसी चीज यहाँ पर अभी नहीं है। इट इज मोर ऑफ द भवरा एंड यू कैन नॉट रियली रिलाई अपॉन दिस पर्सन एट दिस मोमेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स द मेन कार्ड यहाँ पे जो नेम है, जो इसका पॉइंट है, कॉन्फिडेंस। एवरीथिंग टू डू विद कॉन्फिडेंस, सारा काम कॉन्फिडेंस के बेसिस पे होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसको ही इज द वेल रेड, वेल एक्नॉलेज्ड, वेल, वो बोलते ना पूरी दुनिया घूमा हुआ सियाना इंसान है, जिसको अपने काम की बराबर पता होता है कि काम का, बैठे बैठे काम होते हैं, थ्रोन पे बैठा है ना, सो ही इज वेरी वेल सीटेड देयर। Quickly, let's do the sword suit and we will wind off for today. फटाफट से, and the next 2 suits and your questions we will continue with tomorrow. Everyone ठीक है with this? Because अभी इससे ज़्यादा मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी ना, फिर वो next class मेरी अटक जाएगी। So, starting with the suit of swords. Swords is represented by air. All about communication and thought. पूरा का पूरा communication and thought process जो है हमारे suit of swords से पता चलता है। Ace of swords. A sudden idea, thought माने idea, right? A sudden thought process, the suddenly new clarity into something. 2 of swords, I don't want to communicate with you. Block कर देना किसी को, देखो वो दोनों हाथ पे ऐसे तलवार लेके बैठी, don't come to me, not available as a person. Suit of swords is a little heavy and a little negative energy, so थोड़ा सा आज heavy लग भी जाएगा तो it's okay. कल हम लोग दोनों अच्छे वाले suits करेंगे, पहले pentacles and last में cups energy, which is very very sweet and nice. 3 of swords, अभी देख लो दिल बना हुआ है जिसपे 3 खंजर लगे पड़े। किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपका दिल टूट गया, कहते हैं ना उसके वर्ड्स ने मेरा दिल तोड़ दिया, और खंजर आर पार हो गए हैं, माने कि बड़ी जोर का मारा है आपको, कैसे? वर्ड्स से। ये फिजिकल नहीं है, ये वर्ड्स है, मेंटालिटी है, थॉट प्रोसेस। 4 of swords, someone who is lying down on a hospital bed. आप हर बार देखोगे हर इंसान बोलेगा, एटलीस्ट मेरे हर वीडियो में तो जब भी 4 of swords आता है, टेक केयर ऑफ योर बैक। पीठ की बैंड बजती जब भी ये कार्ड होता है,
टेक अ ब्रेक, कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होना। कंट्रोवर्सी क्या होती है? स्पीच, वर्ड्स, कम्युनिकेशन, नेगेटिव कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीटिंग, सैडिज्म, किसी को रुला के उसके मजे लेना, किसी को हैरान करके उसके मजे लेना कि मैंने तो इसको तंग कर दिया, मेरे को तो बड़े मजे आ गए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवल, कहीं पे ऐसे चले जाना जहां पता है कि मैं जहां हूं उससे बेटर जगह पे पहुंच जाऊंगा, इन दैट परसूट गोइंग समवेयर अहेड। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं उसको भगोड़ा बुलाती हूँ। इन द लिटरल सेंस, दिस इज द चीटिंग कार्ड। ये एक्स्ट्रा मैरिटल चीटिंग हो सकती है, पैसों की चीटिंग हो सकती है, कोई भी। लेकिन अगर आपको एक मम्मी आती है और बोलती है मेरे बच्चे के बारे में आप कुछ बताओ, अब आप तो टंग टाइड हो गए कि यार मैं बोलूं क्या, मैम ने तो बोला एक्स्ट्रा मैरिटल है, बच्चा तो 7 साल का है, चोरी चकारी है, बच्चा तो चोरी कर नहीं सकता, मैं क्या बोलूं क्या? आप क्या बोलोगे इसके लिए? ये वो बच्चा है जो अपनी मम्मी को तंग करके खुश है। वो कुछ बच्चे नहीं होते मम्मी को दूध पीने के लिए पीछे 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 भगवाते हैं, एंड दे स्टार्ट लाफिंग ओवर, मैंने मम्मी को तंग किया। वही नटखट काइंड, जैसे कृष्णा थे अपनी मम्मा के साथ, नटखट थे ना, ये नटखट बच्चा होता है। अटेंशन सीकिंग कह सकते हैं हम इसको। तो आपके पास कौन से लेवल पे, कौन से एज और कौन से स्टेज पे एक इंसान आ रहा है, उसके डिपेंडेंट आप रीडिंग करोगे, विच इज गोइंग टू बी टॉट टू यू इन द क्लास। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी जंजाल में फंस जाना, किसी चीज में बुरी तरह से फंस के रिस्ट्रिक्ट हो जाना, इज द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, रात की नींद उड़ गई है, ऐसे ख्वाब देख लिए, ऐसी कोई चीज देख ली जो रात को आप डर के उठ गए, एंजाइटी, गिल्ट इश्यूज एट नाइट। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चारों खाने चित, किसी ने आपको बुरी तरीके से हर्ट कर दिया, पूरी पीठ पे खंजर घुसे दिए उसने। someone who's hurt you in all 4 corners. Page of swords, अब ये बच्चा है और कार्ड क्या, कम्युनिकेशन का, तो someone who is very witty with what they talk, someone who has a very good communication, computer knowledge for example, technologically बहुत ज्यादा strong है। Knight of swords, जिसको जाने की जल्दी, आने की जल्दी, शादी पे जाना है, जल्दी 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 चलो जल्दी चलो, सबसे पहले पहुंचेंगे, गेट भी वही खोलेंगे, और जैसे वो दूल्हा दुल्हन स्टेज पे पहुंचेंगे सबसे पहले लाइन भी लगा देंगे, जैसे खाना खुलेगा, काउंटर खुलेगा, सबसे पहले खाना भी खा लेंगे, और सबसे पहले घर आके बैठ जाएंगे, मैं घर आ गई। इसकी घाई गर्दी का कोई मीनिंग ही नहीं है, लेकिन बहुत घाई गर्दी करते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ हर्टिंग और किंग समबडी एल्स, दूसरों को ना देखना अपनी घाई गर्दी के पोजिशन पे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आजकल कंगना रनौत का हाल है, सच बोलती है पर उसका सच बहुतों को चुभता है। शी स्पीक्स द ट्रूथ, है ना, कोई शक ही नहीं है उस चीज में, लेकिन उसका वो बोलते हैं ना, जैसे वो बोलने जाती है लोगों को लगता है बाप रे अब ये बोलेगी, हम क्या करेंगे। I've seen certain experts of certain people saying बाप रे अगर ये कुछ बोलेगी तो हमारी पता नहीं क्या हाल कर देगी। Someone who speaks the truth. And the King of Swords, have you seen the movie Student of the Year? उसमें राम कपूर ने एक स्टेटमेंट दिया था when he was at the stage, टीचर्स रूल्स सिखाते हैं, विनर्स रूल्स बनाते हैं। So the confidence that guy had, he had a streak of manipulation also. King of Swords, exactly what Ram Kapoor was, a very dry personality, लेकिन उसको अपनी जगह बराबर पता होती है, और वहां पहुंचने में थोड़ा सा येड़ा बनना पड़ता है, ये वो है। I am explaining this with the human examples because court cards है ही human हमारे लाइफ में, right? So this was today's class. Tomorrow we will do 2 suits. I'll tell you all about the course and we will do a lot of myth busting. मैं आप लोगों में से किसी 3 लोगों के लिए readings भी करूंगी for as a live example कि how do we get about it. Now we will end the class. So Nikita Bihani, quickly ask your question. Yes, dear. Good evening, ma'am. Good evening. Could you please explain 2 of sword? मैं लिखना भूल गया, I was taking notes. So 2 बाबू, of you'll sword रह गया मेरा। get the recording ना, तो उसमें आ जाएगा, repeat तो कैसे करें? अच्छा ठीक है, okay. है ना? Okay. All right. Thank you. You're welcome. You're welcome. Gurpreet Kaur, quickly. Unmute yourself. Yeah. मैम मुझे ये पूछना है, जब हम कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो हम एकदम से उसे कनेक्ट कैसे करते हैं? जैसे किसी बंदे की रीडिंग कर रहे हो तो हमें कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा?
ये सब आपको सिखाया जाएगा. हाउ डू यू कनेक्ट विद द कार्ड्स, हाउ डू यू क्लेंस द कार्ड्स, हाउ डू यू ब्ला 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 ब्ला, एवरीथिंग विल बी टॉट फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड इन द क्लास. मैम अगर हम इस कार्ड्स में किसी को कुछ ऐसे, जैसे मुझे ना इसमें क्वेश्चन आपने बोला था, एक तो वहाँ पे चीटिंग की, किसी के फन के लिए चीटिंग करना है ना, कि ये था आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसमें था एक 8 ऑफ स्वॉर्ड में, किसी को परेशान करने की चीटिंग. तो दोनों आपने चीटिंग बोल दी, तो एक तो आपको परेशान करने के लिए, दूसरा भी फन के लिए, तो दोनों परेशान और फन में क्या, एक मजे लेने के लिए, एक दुखी करने के लिए? दोनों चीज. देखो इसकी प्रॉपर डिटेल में पढ़ाई तो राजा क्लास में होगी. दिस इज जस्ट I don't think that you should pick up the meanings right now, because इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर ग्रास्पिंग मेन क्लास में होगा, बिकॉज उसमें हर चीज डिटेल में विद प्रॉपर पॉइंटर्स समझाए जाएंगे. डिफरेंसेस आल्सो which we cannot do here, right? Okay. Yeah. All right. You're welcome. Preeti, ask your question. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, 3 years back, I wanted to learn this course, but somebody told me that it's a two-sided sword. अगर आप किसी की black magic read करते हो, तो that person comes to know, and it will hurt you also. So I got so scared and I did not get into it. But somehow in 3 years, ma'am, I was feeling a strong attraction towards it. But abhi, I just got enrolled in your course. So before learning this, before getting into this, it's very important for me to know this. टू-साइडेड स्वॉर्ड पता है किस तरह से है, मैं आपको बताती हूँ. पहली बात तो ब्लैक मैजिक को रीड करना नहीं करना इज एंटायरली योर चॉइस. आई डोंट रीड दीज थिंग्स, मैं नहीं करती. आई डोंट इंडल्ज इनटू एनीथिंग व्हिच इज नॉट अप्रूव्ड बाय माय सोल. मुझे नहीं अच्छा लगता वो, तो मैं नहीं करूँ, क्योंकि मुझे उसको सॉल्व करने ही नहीं आता, तो मैं रीड कैसे करूँ? ओके. जस्ट बिकॉज मैं टैरो रीडर हूँ, जस्ट बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे दीन दुनिया के हर कोर्स की, हर मोडालिटी की नॉलेज होगी, ऐसा नहीं है. आई चूज टू नॉट स्टेप इनटू सम थिंग्स. डबल एजेड स्वॉर्ड कैसे है, देखो अगर आप है ना एक सपोज आप एक कपड़े की दुकान लगा के बैठे हो, आप कपड़े की थान पे बेचते हो मीटर बाय मीटर, या लगा लो कोई ड्रेस डिजाइनिंग करते हो, आप उसमें अगर चीटिंग कर लेते हो, सपोज आप एथिकल नहीं हो, आप चीटिंग कर लेते हो, सामने वाले ने बोला मैडम 1.25 मीटर दे दो, तो आपने 1 मीटर 1.10 दिया, 1.25 की जगह ओवर चार्ज कर लिया, यू नो वट एवर वेज में आपने कर लिया, उसके ना गलत कर्म के रिजल्ट शायद 1-2%, 2%, 5% होते होंगे. ठीक है. फूड इंडस्ट्री में चीटिंग कर ली वट. लेकिन जैसे आप कोई होटल्स है, होटल्स में क्या होता है, डू यू थिंक दे आर सो एथिकल कि अगर वो खाने में फंगस पकड़ गया, खाना सड़ गया, तो उसको फेंक के नया देंगे? वो तो उसी को बना के दे देंगे. कई बार तो किसी को जूठा रखा हुआ भी बना के दे देंगे, आपको क्या पता चलने वाला है, हाँ टेस्टी है चलो खाओ. What happens inside the kitchen we will never know. So we do get cheated at many levels in our lives. But if you are into occultism, whether it is tarot, astrology, whatever, and you cheat, बॉस आपकी तो फिर लग गई. बिकॉज इसकी सजा बहुत 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 बुरी होती है. वाई? यू जस्ट डोंट बिकम अ टैरो रीडर. दिस इटसेल्फ एक्सप्लेन्स. जब मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, आप में से कितने लोगों जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हो, देयर वर ओनली 25 hands raised. And when I asked how many of you all have learned tarot or whatever, just known tarot, there were 55-60 hands raised. Everyone who learns tarot doesn't become a tarot reader. Everyone who becomes a tarot reader isn't a professional. Everyone who is a professional doesn't end up reading for clients. There's a difference. हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, हम दुकानें देखते हैं, जेवर की दुकानें लगा लो, कपड़े की दुकानें लगा लो. आप मार्केट में देख रहे हो, आप कौन सी दुकान में घुसोगे? जहां गर्दी होगी. और कुछ लोग जो दुकान लगाते हैं, देखो देयर आर पीपल हु हैव शॉप्स, उनके पास माल भी पड़ा होता है, सेल्समैन भी होता है, बेचारे ऐसे खड़े होते हैं, उनके पास कोई नहीं होता. दुनिया को क्या बोलेंगे? हमारी कपड़े की दुकान है. चलती किसकी है? वो सामने वाले की, जहां पे गर्दी है. उसके पास रोटेशन भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, टाइम भी नहीं होगा. ये बोलेगा हाँ जी मैडम आ जाओ, चाय पियो, पानी पियो, जूस पियो, फलाना ढिमकाना, ऑल ऑफ दैट. वो बोलेगा लेते हो लो, नहीं लेते, इट डजंट हैव टाइम. सेम वे टैरो रीडर्स बहुत होते हैं
the ones who are actually professionally practicing are so few, because you don't choose tarot, tarot chooses you. That's the difference. और जब आपको चूज करते हैं, इसका मतलब ये कि आप एक भगवान के मैसेंजर बनते हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि and I'm not glorifying this is the fact and the truth I'm talking to you about. हम कहते हैं भगवान ने माँ क्यों बनाई? क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई. सेम वे मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि गॉड कैन नॉट बी देयर एवरीवेयर. अभी अगर आप मेरे को कौन फोन करता है, मेरे पास कौन आता है एज अ क्लाइंट, मेरे पास कौन आता है? देखो, मैं सिखाती कितनों को वो तो अलग बात है. मेरा एक्चुअल टेस्ट कब? जब मैं किसी की रीडिंग करूँ. हियर आई एम नॉट बीइंग टेस्टेड. मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उतनी दे रही हूँ, लेकिन वो नॉलेज से मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ कि नहीं, वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उस पर डिपेंड करता है कि नहीं. सपोज नाउ प्रीति इज माय क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, या लगा लो बिटवीन मी एंड माय गॉड, और मुझसे 4 क्वेश्चंस पूछती है, मैं रिप्लाई नहीं दे सकती, तो फिर काहे की रीडर हूं मैं? फिर किस बात की रीडर हूँ? करेक्ट है. तो जब मैं वो कर रही हूँ, मीन्स I am being a messenger of God, because he can't be at every place where everyone is tired, where everyone is about to give up, when everyone कोई परेशान होता है. ठीक है, आपके ऊपर ट्रस्ट करके आता है. आप एक इंसान, अभी मेरा लगा लो एक सुपरमार्केट जैसा कोई दुकान है, तुम्हारे घर में ब्रेड खत्म हो गई, तुमने आई 20 रुपए की ब्रेड ली, चलते बने. हाउ आर यू एंड आई कनेक्टेड? मैंने दुकान रखी, ब्रेड रखा, आपको जरूरत है, आप आए और लेके, लेकिन आप परेशान तो नहीं हो ना. अब दुकान मेरी है, मैं 20 की ब्रेड रखू, 25 की रखू, दुकान मेरी है, माई चॉइस. मैं टैरो रीडर हूं, मैं 2000 की रीडिंग करूँ कि 20,000 की रीडिंग रखू, चॉइस मेरी है. आपको चाहिए तो आप आओ, बट आप मेरे पास कब आओगे? जब आप परेशान होगे. Nobody has till date told me, मैडम मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, आपके साथ रीडिंग अपॉइंटमेंट बुक कर रही हूँ, टिल डेट. और ना वो होने वाला है. तो होता क्या है, जब कोई इंसान तंग है, परेशान है, अपसेट है, जूझ रहा है प्रॉब्लम से, वो मेरे पास आता है, माने एट अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी लेवल. तो क्या मेरा बनता है मैं उसको चीट कर दूं? तो वो भगवान मुझे क्या करेगा? मैं तेरे को ये पोजीशन पे रखा, people trusted you, I gave you the responsibility, I gave you the intuition, I gave you the position, और तूने ये किया. बताओ. But people do. This is the double-edged sword in tarot or in occultism for that matter. So till जिसको as an interest सीखना है, बहुत बढ़िया बात है. जिसको as an interest profession बनाना है, there's nothing wrong in charging for your services. Nothing wrong. I don't teach for free, you don't learn for free. I don't read for free, you don't read for free. So it is okay. That you should not, because this is भगवान की दी हुई देन, तो आपको पैसा नहीं चार्ज करना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई. अब कलयुग में रहते हो, सत्युग की बातें नहीं करो. Charge, overcharge. I know my value ना. Who are you to tell me, मैडम 200 रुपया चार्ज करो? Who am I to tell you, प्रीति आप 100 रुपया चार्ज करो? How could you charge 2000? भैया ये मेरा रेट, आना है नहीं आना, योर चॉइस. ठीक है ना. लेकिन अगर आपने 2000 चार्ज किया, उसका वर्थ उसको दो. आपने कहा हाँ आप जाओ एंड यू पे मी, मैं आपकी हीलिंग करूंगी, मैं बैठ के इधर केबीसी देख रही हूँ, हाँ मैंने हीलिंग तेरी कर दी. बहुत 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 गलत बात है. सामने वाले ने अपने गलत टाइम पे, अपने तंगी वाले टाइम पे, यानी कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल तंगी के टाइम पे आपको ट्रस्ट करा. हाँ, आपने रीडिंग करी, उसको नहीं लगी, उसको नहीं फला, वो अलग बात है. यू डिड योर बेस्ट. फिर बाकी इट इज, उसकी भी तो कर्म ऐसे होने चाहिए ना कि आपकी रीडिंग, अभी हर डॉक्टर थोड़ी ना हर एक को सूट करता है कि नहीं? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. बट चीटिंग, किसी का एडवांटेज लेना, जैसे मैंने वो लड़की के बारे में बताया, मैंने उसको साफ मना कर दिया. तो मुझे पूछती कि मैम क्या मैं फिर भी शादी करूं? मेरा तेरी मर्जी. Because she was in love with that guy for 5 years, even I was feeling bad for her. लेकिन जे अगर उसे कुछ हो जाता वो लड़के को, फिर मेरे फीलिंग बैड का मैं क्या करूं? है कि नहीं? तो ये चीजें हैं. This is where the thing is. मैम जैसे आपने बोला कि आप रीड ही नहीं करते उस ब्लैक मैजिक के ऊपर, अगर कार्ड नहीं सामने आ गया
तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये बताना, या फिर हम उसको स्किप करेंगे? क्या करेंगे? हम स्किप भी नहीं करेंगे, हम बताएंगे भी नहीं। अगर कार्ड में आ जाता है, मैं उसे रेमेडी दे दूंगी बिना बताए कि यार तेरे पे तो ब्लैक मैजिक हो गई है। मैं उसका रात का नींद, उसका देखो पता है एक बात तो एक बार है ना प्रीति, इधर दुनिया के 90% लोगों को लगता है उन पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बराबर है। हर एक का आज का हैबिट हो चुका है, माय बिजनेस फील्ड, किसी की नजर होगी, किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा। It is not like that. It is not that easy. It is not that simple, and it is not that common like a mango or a banana everywhere. Yeah, it is not like that. अगर आपको स्ट्रांगली लगता है, जैसे कि अगर मुझे कभी किसी की डेथ दिखती है, मुझे कभी कोई ऐसी चीज दिखती है, मैं बोलती नहीं हूँ। I can't scare the shit out of somebody. I pray myself to be wrong. I still give a remedy without letting it come on my face, and my job is to ease the person. आप एक डॉक्टर के पास सर्जरी करवाने जाते हो, आप माने एनीबडी, फंडा क्या है कि मेरा वो बॉडी पार्ट ठीक हो जाए, मोबाइल हो जाए वापस, एज इन हार्ट फंक्शनिंग सही नहीं तो हम लोग हार्ट सर्जरी करवा लेते हैं, नी सर्जरी। तो बेसिकली एक बंदा मेरे पास कब आता है? जब वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, व्हाटएवर वे में हिला हुआ, तो मुझे उसकी अलाइनमेंट करके उसको एक लो फ्रीक्वेंसी लेवल से उठा के हाई फ्रीक्वेंसी पे बिठा करके एटलीस्ट वहां उस समय पहुंचा करके वापस भेजना। अब वो लो फ्रीक्वेंसी पे आया है, तेरी तो बीवी का अफेयर चल रहा है, अटैक से उधर ही मर जाएगा वो। हाँ, तेरे पे तो ब्लैक मैजिक किया, बड़ी जोर, तेरे फैमिली वाले नहीं किया है एक मोटी मोटी आंख वाले, गोरे गोरे गोल गोल मुंह वाले। अरे तुम्हारी फैमिली के 90% लोग ऐसे ही दिखते हैं यार। Why do you mislead people? We have also been through these things. For a few bucks of money, I always say this in each and every of my class. God forbid अगर आपके ऊपर कभी ऐसी भी दिक्कत है कि घर में खाना ना हो और आपको चीटिंग इस फील्ड में करके फिर पैसे कमाने हो, 2 रात भूखे सो जाओ, अपने बच्चों को भूखा सुला दो, पर गलत काम से पैसा नहीं कमाना। That is not the way, because वो जो एक सोल की हाई लगती है ना वो टाइम पे बहुत बुरी होती है, नहीं करना कभी भी। That is wrong. And if you feel that you have that responsibility and you can take it, that day you will be the correct professional tarot reader. ठीक है? Thank you, ma'am. You're welcome. हमारे 15 minutes extra हो गए, मेरे को आगे की क्लास देनी है, so let's continue this tomorrow. Yes, आपके जो भी questions है हम लोग कल करते हैं। I'll try my level best, क्योंकि हमारे पास भी खाली कल 2 ही सूट्स है, which will be done in 10 minutes. So we start 7 p.m. sharp, and by 8:15, 8:30 we will finish. Okay, and I'll see you all tomorrow. Thank you. इस क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक मैं थोड़ी देर में भेज दूंगी, YouTube पे आ जाएगा। Jaspreet, not right now. I've already answered many of your questions. I'm sorry, no. I have to give time to a lot of others. Nisha, please. I have another class to attend. I'm sorry. Conduct, not even attend, conduct. And they're all waiting here only. So I have to rush. I'll see you all tomorrow. Thank you and bye-bye. Take care.